Happy Women's Day. Happy Women's Day to all women who are watching this episode, and thank you. In the girl child, the treatment needs to start early. Women में problem क्या होती है? Because the start with bone is lesser. Important for you to understand that what is your vision for your business and where do you want to take that business. जब आप थोड़ा सा weights करेंगे तो आपकी जो bone की weakness होते जा रही है वो कम हो जाएगी। डेंटल टॉक के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही स्पेशल दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ये दिन डेडिकेटेड है हमारी सारी लवली लेडीज को। तो हैप्पी वुमेन्स डे जो भी ऑडियंस ये वीडियो देख रहा है। एंड आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। शी इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ऑर्थो स्क्वायर, डॉक्टर रिद्धि राठी शेठ। So you are in this profession over 20 years and you have seen lots of ups and downs, lots of obstacles. So आप young women को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? When you look at doing some work, right, it is a passion project most of the time. If you are interested or if you love your job, okay, it does not feel like work. What I feel most of the women who are entering into the entrepreneurial world miss out is how to prioritize things. So of course, as a woman, your expectations are much more than a man. You have to be, the boss at the clinic, but you also have to be a mother at home and wife, as well as bahu, as well as a girl child to your parent who's taking care of them. So balancing all those roles is most important, but prioritizing what comes at that point in time, what is a priority, is one thing that I would say if you want to have a successful business career. Second, it is most important to have support of family at home. So keep good relations with your family because that is one strength for me. So that's something very important advice that I would give all the women. The most important that I will give is whenever you come into the world of entrepreneurship, and if you are a mother, don't feel guilty because guilt does not let you grow to your potential. Whatever you are doing for your child, and you should expect the same from your girl child if you have, or a child, because they are going to become big and they are going to become business owners, or they will be working, or they'll become CEOs or something big, and they will also have to give their 100% to their businesses. So as a mother, if you are one, do not ever feel guilty of choosing sometimes work over your family. So let's talk about motherhood. So when a woman become a mother, it's a very special time. Of course. And in that special time, so कुछ dental consideration करनी चाहिए उन्हें, like before pregnancy? Actually, see, pregnancy, of course, is the if the women today want a child. Most women don't want child. If you want a child, of course, pregnancy and motherhood something really, really special. There are a lot of myths and consideration for women who are going to become pregnant, because we start taking care of our body, but we don't know that how important mouth is for a woman, especially लड़कियों के लिए. Because क्या होता है कि before pregnancy, it is very important that you get your complete mouth checked up, healed if you are having a planned pregnancy, because oral infections can actually have a lot of detrimental effect after the pregnancy. मतलब detrimental का मतलब है, suppose अगर आपके मुंह में cavities हैं तो वो रूट कैनाल्स में जा सकती हैं. अगर आपके मुंह में गम डिजीज है या खाना फंसा हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे मसूड़ा सूज जाता है वगैरह, तो आपको, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो आने वाला जो बेबी है उसके ऊपर दो बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लो बर्थ वेट एज वेल एज fetal deaths if you have oral infection. So yes, before pregnancy it is very, very important to get your cleaning mouth healthy. So एक छोटी सी प्रॉब्लम लाइक बहुत बड़ी बन सकती है. Exactly. in pregnancy. Correct. And after pregnancy कुछ dental consideration करनी चाहिए? See, after pregnancy से पहले ना, let me go into pregnancy. During pregnancy क्या हो जाता है कि there are certain trimesters जहाँ पर हम dental treatments नहीं कर सकते हैं, तो एक restriction आ जाता है on dentist to help the pregnant women.
तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज योर हॉर्मोन्स हैव changed. Changing. Yes, especially estrogen, progesterone. Now, estrogen is one hormone that is important for bone health. Okay, it actually helps the blood calcium go from blood to bone and from bone to blood. So this transaction, इसको आदान प्रदान जो होता है blood का calcium का, estrogen actually regulates it. Now, when this happens, what happens is women get a slight amount of bone loss. B, most important, उनको है ना gum disease हो जाते हैं, gum swellings होने लग जाते हैं. Now, because gum swellings are there, उनका खाना फंसता है और gum swelling हो जाती है. So pregnancy is causing gum swelling, food lodgement is causing gum swelling, and they can get simple granulomas, मतलब एक सूजन जैसा, एक बड़ा सा ट्यूमर जैसा उनके मसूड़ों पर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी ट्यूमर. Benign होता है. So it's harmless. It is not really harmless in terms that it is not cancerous, but उससे क्या होता है कि आपके दांत जो हैं वो लूज हो सकते हैं. ऑल्सो क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस होती है वेमेन्स को, राइट, तो जब वो एसिड बाहर आता है दांत में तो इट कैन ऑल्सो कॉज इरोजन ऑफ टीथ. मतलब आपके दांत जो हैं उसमें आपका जो ऊपर का इनामल है वो निकलने लग जाता है बिकॉज ऑफ दैट वॉमिट्स. सो इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप मेक श्योर करें कि आपका ओरल हाइजीन बहुत अच्छा है. सिंपल क्लीनिंग्स कैन बी डन इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अच्छा, ये एक मिथ है कि आप एक्सरे नहीं ले सकते इन प्रेगनेंसी, बिकॉज इट इज़ नाउ नोन फैक्ट कि डेंटल रेडिएशन जो एक एक्सरे की रेडिएशन है वो बहुत ही माइन्यूट रेडिएशन है. और मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ. आई वाज प्रेग्नेंट एंड बिकॉज आई वाज वर्किंग आई डिडंट रियलाइज आई वाज प्रेग्नेंट फॉर 3 months and I was taking x-rays and my child is very healthy, touch wood. So 1 या 2 या 4 एक्सरे ऑफ डेंटल के एक्सरे से फीटल पे कोई भी असर नहीं होता. एंड पोस्ट प्रेगनेंसी कुछ केयर देने ऑफ कोर्स. ना अब क्या हो गया कि सपोज यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये जो मैंने सारी प्रॉब्लम्स बताई, आप अगर नहीं केयर कर पाए हो तो पोस्ट प्रेगनेंसी क्या होता है कि अगर आपने फिर से नहीं किया, इफ यू डू नॉट गेट इट ट्रीटेड, तो चांसेस है कि यू आर गोइंग टू गेट मच मच मोर एडवांस्ड डेंटल डिजीजेस आफ्टर दैट. तो इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी प्रेगनेंसी के बाद आप जाएं और एक डेंटल चेकअप करवाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि यू विल बी इन अ सिचुएशन टू रिकवर from all the problems that you have faced during pregnancy. Now, the most important thing I will tell you, most women in 18 years, when you were saying what I have seen, and I've seen ups and downs, this is something that I've seen consistent with women who come, say, at the age of 35, 40, 50 with multiple dental issues. The first thing that they say is कि मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरा ये हालत, उसके पहले मेरे दांत एकदम अच्छे थे. तो this is a repeated thing that we are seeing in dental clinics. So commonly like post pregnancy बहुत issues आ जाते हैं लड़कियों में. Yes, because आपने take care नहीं किया during pregnancy. So best यही होगा कि आप like pregnancy के पहले ही सारे dental treatment आप अपने कर लो. So this is the best thing you can do. If suppose अगर आप planned pregnancy कर रहे हो, जैसे IVF कर रहे हो, या फिर आपने planning करी है कि हाँ in the next year we want, so it is important for you to make sure that because mouth is full of calcium, teeth is calcium, bone is calcium. So जो patients like IVF ले रहे हैं उनको भी कुछ consideration करनी पड़ेगी? Same consideration है. In fact IVF का तो मैं आपको बताऊंगी कि if you have oral infection, then the chances of you not getting implantation done are very very high. तो अगर आपको successful IVF treatment भी चाहिए तो भी आपका oral hygiene बहुत ही अच्छा होना चाहिए. एंड सेम प्रॉब्लम. इनफैक्ट IVF में एक और चीज़ जो हम नॉर्मल फीमेल्स में भी देखते हैं इज ए लो बर्थ वेट और फीटल डेथ. अगर आपका ओरल इन्फेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन. तो माउथ का जो इन्फेक्शन ऑफ विमेन होता है, मदर का जो इन्फेक्शन होता है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में से, गम्स में से ब्लड स्ट्रीम में से आपकी प्रेगनेंसी तक जा सकता है. तो दैट इज वाई इट इज utmost important that women if they are taking IVF to make sure that because see they are planning, they are wanting this. तो अगर आपका नेचुरल वे से नहीं हुआ है and you are going through such an expensive treatment, it is very very important that like you are उस treatment के पहले आप treatment करा लो. 100%. ये सबसे मतलब best है.
हाँ एंड अभी समझो लाइक आफ्टर द बेबी बर्थ, सो जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं तो दोनों का जो ग्रोथ फेज होता है वो कैसा होता है? एक्चुअली ना ये ना बहुत पेरेंट्स को नहीं पता है. दिस इज समथिंग बहुत सारे लिटरली ऑल ऑफ अस डोंट नो. अगर मैं शायद डॉक्टर नहीं होती तो शायद मुझे भी नहीं पता होता कि विमेन और मेन मतलब बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स ग्रो एट अ डिफरेंट फेज ए एंड डिफरेंट पेस. हमको पता है कि हाँ अरे लड़के हैं थोड़े बाद में लंबे होंगे, बट क्यों? क्योंकि क्या है कि सी चिल्ड्रन ग्रो एक स्पर्ट्स में. तो एक इनिशियल ग्रोथ स्पर्ट है, फिर मिडिल ग्रोथ स्पर्ट है, फिर पिवटल ग्रोथ स्पर्ट है. ऐसे 3 ग्रोथ स्पर्ट्स में होता है बच्चे ग्रो, एंड ये स्पर्ट्स लास्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 years. Okay, now with girl child what happens is that their growth spurts start ending, like their pubertal growth spurts end between 11 years to 14 years. एंड अगर आपका आजकल के तो गर्ल्स आर गेटिंग पीरियड्स बहुत अर्ली इन लाइफ, तो 10 से 12 और 13 साल की एज में भी उनका प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट आ जाता है. अच्छा, अब क्या होता है कि जो जॉ बोन्स हैं दे ग्रो एट अ डिफरेंट फेज. जो ऊपर का जबड़ा है विच इज कॉल्ड मैक्सिला, मैक्सिला पहले मिडिल ग्रोथ स्पर्ट में ग्रो होके रुक जाता. इट स्टॉप्स ग्रोइंग आफ्टर दैट एट ऑल. फिर जो नीचे का जो बोन है दैट इज मैंडिबल, वो धीरे धीरे आपके प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट में ग्रो होकर वो आपके एंड पोजीशन पे आता है. दिस इज हाउ ग्रोथ हैपेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स. बट इन गर्ल्स बिकॉज द ग्रोथ स्पर्ट कम्स वेरी अर्ली, तो जो हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो पेरेंट्स को लगता है कि अरे 10 साल में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, विच इज अ मिथ. क्योंकि गर्ल्स में 10 ईयर 12 ईयर्स में उनका पूरा ग्रोथ खत्म हो जाएगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू हार्नेस द ग्रोथ. तो अगर बच्चों का जबड़ा आगे है, जैसे गर्ल्स का स्पेशली, तो देयर पेरेंट्स शुड स्टार्ट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एट अ वेरी अर्ली एज, 7 years 8 years, अगर उनको उनकी ग्रोथ को हार्नेस करके इंप्रूवमेंट्स लानी. सेम थिंग इन बॉयज, इट इज डिफरेंट बिकॉज बॉयज विल ग्रो एट 12 to 14 years of age एंड उनका एक लास्ट प्यूबर्टल ग्रोथ एज इन लेट ग्रोथ स्पर्ट होता है अराउंड 18 to 21 years of. तो we as doctors have to harness that growth कि अगर जबड़े आगे हो रहे हैं और हमें ऑर्थोपेडिक, डेंटल ऑर्थोपेडिक, इसको हम बोलते हैं डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक, अगर उससे हमें कंट्रोल करना है, सो इन चिल्ड्रन द ट्रीटमेंट नीड्स टू, इन द गर्ल चाइल्ड द ट्रीटमेंट नीड्स टू स्टार्ट अर्ली देन इन द बॉय चाइल्ड. एंड अभी जैसे कि गर्ल्स चाइल्ड में हमें अर्लियर चालू करना पड़ता है डेंटल ट्रीटमेंट, सो कुछ कंसिडरेशन हमें करना पड़ेगा मतलब डेंटल ट्रीटमेंट लेने से पहले? नहीं, सी आप मोस्ट children in India don't come to dental offices unless they have pain. लेकिन और एक्सट्रीम लेवल पे जब तक नहीं जाते नहीं आते. एग्जैक्टली इंडिया में यही एक प्रॉब्लम है कि रूट कनाल क्यों कर रहे हो, मुझे दर्द नहीं हो रहा, तो ट्रीटमेंट क्यों करना, मुझे दर्द नहीं हो रहा. नहीं, ऐसा नहीं है. फर्स्ट विजिट जो है आपकी गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, आपको एज अर्ली एज 3 years 4 years जहाँ पे उनके सारे दांत आने लग जाते हैं, मिलती कर लेनी चाहिए. अगर सपोज now let's talk about a girl child because it's a women's day and we are concentrating more on women. आज गर्ल चाइल्ड पे कंसंट्रेट कर. अगर हमारे पास गर्ल चाइल्ड है तो एक चीज़ है, अगर सपोज उसका जॉ आगे आ रहा है, अगर वो थंब सकिंग कर रही है या पेपर लेती है या अंगूठा सकिंग है, तो वो तभी जो आपका जबड़ा है या ग्रोथ ऑफ बोन है वो अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, तो द जॉज ग्रो ऐसे फॉरवर्ड. नाउ हम एज अ डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट क्या कर सकते हैं, हमारे पास अप्लायंसेस हैं जिससे हम जॉ ग्रोथ को मॉडिफाई करके एट दैट स्टेज हम उनके परफेक्ट फेशियल फीचर्स ला सकते हैं. ओके, दिस इज आवर मैजिकल पावर. बट टू हार्नेस दैट अगेन एज आई सेड दैट वो हमें जल्दी करना है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आफ्टर द एज ऑफ 6 years one dental visit every year to make sure that all your teeth are coming at proper site. Proper site का मतलब क्या है कि मिल्क टीथ गिरेगा फिर परमानेंट टीथ आएगा. पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे ये मिल्क टीथ तो है गिरने वाला है. अब क्या हो गया कि अब हर मिल्क टीथ का गिरने का एक अलग एज होता है. तो अगर ये दांत गिरना चाहिए सपोज एक 5-6 एज पर, और अगर ये दांत 8-9 साल तक भी नहीं गिरा तो यू शुड बी स्कैर्ड. अब ये जो कनाइन है, ऊपर का कनाइन है, वो 12-13 साल पे गिरना चाहिए, अगर वो नहीं गिरा है तो दैट्स अ स्कैरी थिंग. तो इसीलिए वन डेंटल चेकअप
every year after the age of 6 years is must, so that the doctor can identify कि all the teeth are properly coming into the mouth, and one checkup every 2 to 3 years with an orthodontist. Okay. सो अभी बहुत लोग तो नहीं आ पाते ऐसा, और बहुत लोगों को अवेयरनेस ही नहीं रहती एक्चुअली ये हमें करना है, एंड जिन लोगों की बस छूट गई बचपन में सो वो लोग मतलब आफ्टर 16 और आफ्टर 18 सो वो लोग क्या कर सकते हैं? सी कैसा है ना कि आज विद एडवांसमेंट ऑफ डेंटल इंडस्ट्री, राइट, ऐसा नहीं है कि सी जब हम ब्रेसेस या ऑर्थोडोंटिक्स की बात करते हैं या मुंह अलाइनमेंट की बात करते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स अबाउट दैट. अगर हम जनरल ओवरऑल हेल्थ की भी बात करते हैं, तो अगर आपकी बस मिस हो गई है तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. ब्रेसेस है जो आप लिटरली विद न्यूअर टाइप ऑफ ब्रेसेस, जैसे सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस हो गए आजकल जो नए ब्रेसेस हैं, वो आप रियली, माई ओल्डेस्ट पेशेंट इज अ 54-year-old विमेन. तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रेसेस आप नहीं लगा सकते हैं, बट ब्रेसेस का क्या है कि लोगों को वो दिखते हुए अच्छे नहीं लगते. स्माइल, हाँ, क्योंकि ब्रेसेस में दिखना भी अच्छा नहीं लगता. और एट 17-18 दे आर गोइंग थ्रू दैट phase of teenage where looks also today currently, because it's a Korean inspired generation, तो उनको क्या है कि हमें अच्छा दिखना है, हमें ब्रेसेस नहीं चाहिए. तो ऑफ कोर्स आज तो एडवांस्ड हो गए हैं, अलाइनर्स आ गए हैं, कितनी सारी कंपनीज हमारी जैसे फ्लेक्सी स्माइल है दैट इज डूइंग अमेजिंग अलाइनर केसेस. तो अलाइनर्स हैं जो उससे आपके दांत टेढ़े मेढ़े जो हैं वो सीधे हो सकते हैं, या गैप से तो सीधे हो सकते हैं. नाउ प्रॉब्लम क्या है ना शुभम, कि इंडिया में लोगों को टेढ़े मेढ़े दांत प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते. इंडिया में लोगों को गैप दांत प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते. इंडिया में दांतों में कुछ भी होना इम्पोर्टेंट नहीं लगता. अब मैं आपको एक केस बताती हूँ. अभी रिसेंटली है ना, बहुत सारे यंग गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ 18, 19, 20, 21, दे आर कमिंग विद हेडेक्स. एंड what we realized now, पहले क्या होता था, these headaches used to take time. अगर आपका बाइट पूरा डिस्टर्ब्ड है तो these headache used to take time, like 35-40 years में आते थे, बैड बाइट्स के कारण, बैड दांतों के कारण. अब at the age of 20 and 21 we are getting people with TMD, temporomandibular disorder. मतलब आपको यहाँ से हेडेक शुरू हो रहा है जो आपके पूरे सर में जाए. अब आप हेडेक के डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाइयाँ ले रहे हो, बोल रहे हो कि अरे स्क्रीन टाइम बढ़ गया इसलिए हेडेक हो रहा है. बट मैनी अ टाइम पीपल हैव नॉट रियलाइज कि बैड पोस्चर बच्चों का, क्योंकि आज कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ़ोन पे काम कर रहे हैं, नेक इज बेंडेड, ये सारे मसल जब हिल जा रहे हैं तो आपकी बाइट हिल जा रही है और बच्चों को टेंशन हेडेक्स हो रहे हैं. एंड दैट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम बाइट. तो 16 ईयर टू 20 ईयर इज़ अ वेरी फ्रजाइल एज, जहाँ पर हम एक्चुअली मोल्डेबल एज बोलना चाहिए. उसमें हम सब कर सकते हैं, हम ब्रेसेस भी कर सकते हैं, हम अलाइनर्स भी कर सकते हैं. बट हाँ, इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप दांतों की हेल्थ को ना इग्नोर करें. सो मतलब जब उनकी प्यूबर्टी चल रही है तो तभी अगर वो ब्रेसेस कर लेता है तो बहुत अच्छा रहता है. Pubertal growth spurt is one of the best times to do orthodontic treatment. But जैसे अगर देखो अभी अंडरस्टैंड माउथ में दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं. एक आपकी जबड़े से रिलेटेड, सो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड अनदर इज योर टीथ रिलेटेड. नाउ से सपोज यू हैव अ परफेक्टली गुड फेस बट आपके दांत में प्रॉब्लम है, so that can be treated at any age, no problem. बट अगर आपके जबड़े में ही प्रॉब्लम है, मतलब आपके दांत आगे हैं क्योंकि आपका बोन पूरा आगे आ गया है, हाँ, so those need to be treated way early in life. 7 years, 8 years, 9 years, 10 years is a very good age to treat वो वाले केसेस. तो अगर सपोज many a times हमारे पास ये भी होता है कि so pubertal growth spurt का जो तुमने क्वेश्चन पूछा था शुभम, pubertal growth spurt में क्या होता है, हम उसी टाइम पे वापस से ग्रोथ को हार्नेस करके जबड़े को कंट्रोल कर सकते हैं, जबड़े को ग्रो कर सकते हैं. वी हैव दीज अप्लायंसेस रेडी नाउ, साइंटिफिकली एडवांस्ड अप्लायंसेस, जिससे हम बहुत इंप्रूवमेंट कर लेते हैं इन pubertal growth spurt. So pubertal growth spurt is the best time to do any time of dental treatment because it is very very stable. एंड अभी अभी जो अडल्ट्स रहते हैं, जो ऑफिस गोइंग वुमेन है, सो उन लोग मतलब अभी बहुत ही ट्रेंडिंग अभी चल रहा है वीनस. सो ये क्या होता है वीनस? सी क्या है ना कि आज ना सबको अच्छा दिखता है. अच्छा, एक स्टडी मैंने पढ़ी थी जिस सेज दैट
people who have good smile have higher chances of getting promotions in their jobs. हाँ, ये मैंने भी सुना था. Yes. तो अब ना इसका जो तर्क निकलता है is that you have a good smile, you have a good personality, it translates into self-love and it translates into self-confidence, which actually helps you in coming to a position of authority where you demand higher salaries for yourself because you are confident. So this is actually the thing. So people who do not have time and cannot go through the braces, aligners. yes, वो केसेस स्पेशली केसेस जैसे ना अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर फ्लोराइड की मात्रा इनटू द वेल बहुत हाई. नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज आपके दांत इज मेड ऑफ कैल्शियम. अगर बहुत ज्यादा फ्लोराइड का पानी आपकी मदर ने भी पिया हो या फिर आप पी रहे हो तो उससे क्या हो जाता है कि आपका कैल्शियम निकल जाता है और फ्लोराइड डिपॉजिट हो जाता है. ना अगर स्मॉल मात्रा में हो गया तो वो आपके दांतों को स्ट्रांग है, बट जब हायर मात्रा में हो गया तो इट कॉजेस फ्लोरोसिस. तो जब आपके दांत में स्टेन, इंट्रिंसिक स्टेन आ जाता है, उसमें क्या होता है, दांत टूटने लग जाता है. वो केसेस हो गए. अब दूसरा एक और प्रॉब्लम हो गई कि आपके दांतों की शेप ही खराब है. मतलब चाहे आपका शायद इनामिल कम होगा, कैल्शियम कम होगा, ग्रोइंग ईयर्स में आपको बहुत बीमारी पड़ती होगी और आप दवाई लेते हैं टेट्रासाइक्लिन वगैरह, तो उनके टेट्रासाइक्लिन चेंज हो जाते हैं. नाउ दीज काइंड ऑफ स्माइल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड विद ऑर्थोडोंटिक्स. इन स्माइल्स को हमें एनहांस करना पड़ेगा बाय गिविंग देम राइट शेप एंड राइट साइज एंड कलर. तो जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, स्पेशली नाउ बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, या तो बॉलीवुड स्माइल बोल लो, हॉलीवुड स्माइल बोल लो, तो ये एक ट्रेंड इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इट. पहले हम क्या करते थे, हम सिर्फ क्राउन्स करते थे, तो उसमें क्या होता है ना, दांतों को ग्राइंडिंग जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है. विनियर्स ना आर लाइक लेंस, वो एकदम पतले होते हैं, जैसे आपने लेंस पहना इतने पतले जैसे चिपका दिए. तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक हल्की सी आपकी दांतों की परेत निकाल रहे हैं और आप वो परेत को विनियर जिसे हम बोलते हैं उससे आप लगा दे रहे हैं. इट्स लाइक अ लेंस विच गेट्स स्टक ऑन द टूथ. नाउ दीज आर कॉल्ड बॉन्डेड अटैचमेंट और बॉन्डेड विनियर्स. अभी इसका एडवांटेज क्या होता है कि वी कैन डिजाइन इट टू द फेस, टू द स्माइल and to the liking of the patient so that they get that perfect smile और उनका confidence boost हो जाए. And like smile designing ये related है कि? Yes. See, some people do smile design for changing the overall perspective of their look. Some have to do it because they have no other choice. जैसे अभी कुछ cases होते हैं, जैसे जब वो smile करते हैं तो बहुत मसूड़ा दिखता है, and और या फिर ना मसूड़े काले दिखते हैं. तो स्माइल डिजाइन में ना बहुत लेयर्स हैं. लोगों को लगता है सिर्फ विनियर्स लगा दिए तो वो स्माइल डिजाइन नहीं है. नहीं, सॉरी. स्माइल डिजाइन का मतलब है कि आपका मसूड़ा किस लेवल पर आपकी लिप्स के साथ है, आपके मसूड़े के जो कलर है वो क्या है, आपकी राइट दांत की लेफ्ट दांत से जो शेप है वो क्या है. सो इट्स अ वेरी एडवांस आर्ट. एंड बिलीव मी, स्माइल डिजाइन एक्चुअली फॉलोज अ प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड गोल्डन प्रपोर्शन, जिससे मोनालिसा बनी हुई है. तो आप सोचो कि स्माइल जो बनानी है, डिजाइनिंग ऑफ अ स्माइल इज एक्चुअली अ वेरी वेरी टेक्निकल आर्ट. तो इट हैज अ लॉट ऑफ लेयर्स. आपको गम ज्यादा दिख रहे हैं तो दैट कम्स इन स्माइल डिजाइन. आपके दांतों की शेप ठीक नहीं है, दांत आगे पीछे और आपको विनियरिंग करके उसको स्ट्रेट करवाना है, वो स्माइल डिजाइन में. आपके दांतों का कलर ठीक नहीं है, आपको व्हाइट दांत करवाने हैं या नेचुरल लुकिंग दांत करवाने हैं, वो स्माइल डिजाइन में. like बहुत वैरायटी है स्माइल डिजाइन. Yes, but basic idea is कि आपकी स्माइल ओवरऑल पर्सनालिटी एनहांस. सो ये तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की बात हो गई. अभी डेंटल इम्प्लांट्स की बात करते हैं. सो अगर डेंटल इम्प्लांट मतलब किसी का बोल मतलब टूथ निकल गया एंड वो लोग बाइट अच्छे से कर पा रहे हैं एंड दे डोंट टेक द ट्रीटमेंट एंड लाइटली ले लेते, जैसे मतलब बहुत लोगों का अवेयरनेस ही नहीं होती, ऐसी कुछ चीज़ होती है. सो उसमें जो वुमेन्स है उसमें क्या असर पड़ता है? एक चीज हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विमेन एंड मेन का जो एक बेसिक फिजिकल डिफरेंस है वो हमें समझना पड़ेगा. ओके, विमेन्स बोन आर
सॉफ्टर एंड स्मॉलर टू स्टार्ट विद. ओके, तो अब क्या हो गया, सपोज आपने कोई दांत निकाला, नाउ कंपेयरिंग टू बॉय एंड फीमेल, ठीक है. तो मेन में क्या होता है, द बोन इज मोर, ऑलरेडी बोन ज़्यादा है. तो दांत निकालने के बाद सपोज एक 8-10, क्योंकि उन्होंने नहीं करवाया और 5-7 साल रुक गए, तो भी उनका जो बोन लॉस है वो थोड़ा कम होता है. नाउ दिस इज सब्जेक्टिव, आपके केस में ज़्यादा हो सकता है, किसी और के केस में कम हो सकता है. बट विमेन में प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज द स्टार्ट विद बोन इज लेसर, आप दांत निकाला तो बोन का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है. दूसरा, स्पेशली ऊपर की हड्डी में वुमेन को तो बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सी व्हाट हैपेंस इज बिकॉज एवरी मंथ दे गो थ्रू द साइकिल ऑफ द नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ड्यूरिंग विच टाइम उनका बोन लॉस भी रहता है बॉडी में, एंड आयरन भी कम हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, विच एक्चुअली हेल्प इन दी गुड ओरल माइक्रोबोम. तो अगर आपका माउथ ही ठीक नहीं है तो अल्टीमेटली आपका जो बोन लॉस है वो बहुत ज़्यादा होगा. तो विमेन में तो स्पेशली कंसिडरेशन ये कर लेनी चाहिए, स्पेशली अब अगर आपका सिचुएशन आता है दांत निकालने का, तो प्लीज़ इमीडिएटली रिप्लेस करवाइए, बिकॉज देर इज़ अ चांस, हाई चांस कि फ्यूचर में आपको बोन बहुत कम मिले. दिस वी सी एवरी डे इन द क्लिनिक. सो बोन्स के बारे में मुझे बात करा तो बहुत डिफरेंस क्या है मैन और वुमेन्स का बहुत सॉफ्ट होता है. सो बोन लॉस से कैसे बचा जा सकता है? सी एक्चुअली यस, हम बोलते हैं हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विमेन डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू नो, दे रियली नीड टू हैव एन हेल्दी डाइट. आप पिल्स पॉप करो, कैल्शियम खाओ, विटामिन खाओ, वो खाओ, मिनरल्स खाओ, बट अगर आपने हेल्दी डाइट ही चालू कर दिया, यू नो कि हाँ मुझे कैल्शियम इस फॉर्म में लेना है. इंडिया में क्या है, चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो. What is tea doing? Tea is actually causing the bone to, over a long period of time, it is causing bone to come out. As especially Indian women, most of them get up and on an empty stomach have a tea, right? सर दुख रहा है, टी पी लो, कुछ हो रहा है, टी पी लो. Now tea over a time, what it is doing is it again is causing the fluorosis on the bone, and it's actually trying and reducing the strength of the bone. Secondly, women will go through menopause. So it starts from the age of 38-40 in women, it still goes up till 44-45. Most women are premenopausal or menopausal at that point in time. अब प्रीमेनोपॉजल हो या मेनोपॉजल हो तो क्या होता है कि ये जो आपके फीमेल हार्मोन्स है जो कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं वो कम हो जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो बोन का आदान प्रदान, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, द कैल्शियम इनटेक बिटवीन द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड into the bone, and bone से blood में नहीं हो पाता है. That is why women have higher chances of something called osteoporosis or bone becoming softer. Now in this situation what happens is, जो हम implant डालते हैं हम एक osteoporotic bone में डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि strength of implant over a long period is a little reduced, right? And अपने यहाँ पर क्या होता है ना, sacrifice is a very important thing with women, and this is something that I will tell you कि आप अपना, अगर आपने एयरक्राफ्ट में फ्लाई किया है और आपने देखा है कि अपना मास्क खुद पहने और फिर किसी की और की सहायता करें, it is very important as a woman for you to realize that take care of yourself first, only then can you take care of your family. This I'm saying now, Shubham, is because I see women coming and spending lakhs of rupees for their husband's treatment who do not even appreciate that treatment, and they themselves really not being able to eat or something like that, and they're like, अरे इनका हो जाने दो फिर मैं करती हूँ, which is a very very wrong attitude, because women bones are much much softer, they dissolve faster, and once tooth is out, brain does not have a signal कि this is an important site. तो वो क्या करता है, बोन हर एक जगह से ब्रेन उसको रिड्यूस करना शुरू कर देता है, इसको हम रूडिमेंट्री होना बोलते हैं. तो जब आपका बोन ही रिड्यूस होते जा रहा है, आपकी बॉडी नया कैल्शियम और बोन नहीं बना पा रही है वहाँ पर, तो आपके जो फ्यूचर के इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा होंगे. तो दैट इज़ वाई आई सजेस्ट कि women if they lose a teeth they should immediately, if men also, but women especially should immediately replace a tooth, A. And for their general health they should do slight amount of weight lifts, because weights will actually make their bone little bit thickened, because हम उसको बोलते हैं overuse hypertrophy.
तो आपके जब आप थोड़ा सा वेट्स करेंगे तो आपकी जो बोन की वीकनेस होते जा रही है वो कम हो जाएगी. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑल विमेन शुड डू. सो ओल्ड एज में कुछ प्रॉब्लम्स लाइक यही सेम यही मतलब कॉमन यही होता है, bone यही loss है की वजह ओल्ड से। एज का. वही जैसे मैंने बोला मेनोपॉज आने लग जाता है तो उसके कारण जो आपकी बोन की पोरोसिटी है वो बढ़ जाती है. बोन का पोरोसिटी मतलब आप एक इमेजिन करिए, मैं आपको एक समझाती हूँ. एक स्पंज ले लो, ठीक है. आप एक पतला स्पंज लो जो एक साथ हुआ है और एक ऐसा स्पंज इमेजिन करो जिसमें बहुत सारे होल. आपका बोन वैसा हो जाता है, इतना पतला इतना सॉफ्ट हो जाता है कि यू स्टार्ट गेटिंग वॉक कर रहे हैं आप फ्रैक्चर आ रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ वुमेन आप बहुत हेल्दी डाइट फॉलो करें, नॉट जस्ट टी एंड खाना. हम खाना खा रहे हैं, खाना इज नॉट अ गुड डाइट. आप फ्रूट्स कितना ले रहे हैं, आप नट्स और सीड्स कितना ले रहे हैं, आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितना ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ वुमेन टू नो. एंड अभी जैसे कि हमने देखा कि मतलब लो डेंसिटी बोन में डेंटल इम्प्लांट कर सकते हैं. 100% कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड वी हैव स्पेशल इम्प्लांट्स विच आर कॉल्ड एक्टिव इम्प्लांट्स. दे आर मेड फॉर लो डेंसिटी बोन. वी कैन ऑल्सो डू समथिंग कॉल्ड बोन ग्राफ्ट टू थिकन एंड मेक द डेंसिटी मोर. सो आज तो हर एक केस पॉसिबल है. देयर इज नो रिजेक्शन करंटली रियली. सो आई थिंक सो डेंटल क्वेश्चंस अभी यहाँ पे हम रैप अप करते हैं. एंड नाउ लॉट्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर आर वाचिंग दिस वीडियो. सो उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं, लाइक वर्किंग वुमेन जो अभी काम वाम कर रहे हैं, सो उनको आप ऐसा क्या टिप्स देना चाहते हैं लाइक दे कैन यूज इन देयर लाइफ? My suggestion to all the women entrepreneurs, mothers or otherwise, is one thing that I would want to tell them. That first is three most important things that you should, as an entrepreneur, do. Prioritize your life, prioritize your day, and prioritize yourself. So these are the three things that I will tell you. First, let's come into the prioritizing of life. First, in prioritizing your life, it's important for you to understand that what is your vision for your business and where do you want to take that business. In that, the most important things that tips that I would give you is sit with the right mindset of people, because when you are sitting with the right mindset of people, your mind also starts to explore more and more opportunities. Have friends in that zone in lot of areas, like marketing, finance, investments, maybe fashion, people who do events, etc. Because what happens is you actually end up getting a lot of insights into these worlds where you are not a pro at. Every business needs a right type of marketing. So show yourself. आज जो दिखता है वो बिकता है. So please, if you are into an industry like a service industry like mine, it is utmost important to create awareness. Whereas if you are into a industry wherein you are selling goods and products, it's maybe if you are scared to showcase your product because they'll get copied, but at least create a storyline on your social media pages for that. When you're coming to prioritizing your life again, it is very important to set your goals, when and where you want to reach at what point in life, right? Then coming to prioritizing your day. See, when you prioritize your day in the sense that I have to achieve this, and then when you tick all of that, at the end of the day, you actually sleep well because you are content that what I set out to do for the day, I have achieved that. It is one of the most important traits that as a business owner we have. Third, we have daily targets for ourselves and monthly targets for ourselves in terms of your physical, mental, financial, every growth. So I want to say, read a book in this much time, or I want to listen to 4 podcasts on this subject, and I want to master an art of this subject. It is an important part of growth. Keep learning. The last thing when I talk about prioritizing yourself, see, it is utmost important for women to have good women friends. These are your recharge units where you go, you meet them, you have a laugh, you come back, because many a times you do not want to share a lot of things that is happening with you at work or anything with anybody, because it only creates more that negativity in your mind.
So you have very good friends where you can go recharge and come back into your life fresh and renewed, wherein you can take on to the world. And last, family support. I do not believe and that any person can actually become happy and successful without a family support. So for me, like my in-laws, my parents, my child, and of course my husband, all of them have been a strong family support for us, me and Dr. Kunal, to grow to where we are. So that is my tip. Then have all of these things, and you will be successful. So that's all for Doctor. Thank you for giving your precious time to us. And happy Women's Day to all of you. If you like the video, please subscribe to our channel. And for more such content, follow us on Instagram also. Thank you. We'll see you in your next video.